So, after doing the first question in our part 3, now we are in the question number 2. आज एक और क्वेश्चन देखेंगे, बीजो क्वेश्चन जोशू जे अगेन इजी बनावी देशू આપણે એક એક એન્ટ્રી જોતા જાશું and we will go forward for the video. Again, this is the question which is asked in the board examination many times. Most of the questions that we are taking in the video are same that are asked in the board papers also. Okay. જ્યારે પણ તમારી એક્ઝામ છે, સ્પેશિયલી સ્કૂલની એક્ઝામ્સ, યુ મસ્ટ સી ધીઝ વિડીયોઝ સો ધેટ ઇટ વિલ બી રિવાઇઝડ થરલી અને એક એક વસ્તુ ડિટેલમાં રિવાઇઝ થઈ જશે ઇફ યુ આર સીઈંગ ધ વિડીયો ઇન ધ વીક ઓફ સ્કૂલ એક્ઝામ્સ. તો એકાઉન્ટમાં તકલીફ ગૌરવ સર છે ને. લેટ્સ સ્ટાર્ટ ટુડેઝ ક્વેશ્ચન. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, વી આર ડુઇંગ ચેપ્ટર નંબર 5, that is admission of a partner. We will see, when a partner enters in the business, how will we write the accounts? Okay, how will we make different accounts? Let's understand that one by one. First of all, this is the question. Okay, Prerna and Piyush, they are partners in the firm, sharing profit and loss in the ratio of their capital. Okay, so their profit and loss ratio is not given, but it is told that they are sharing that profit and loss in the ratio of their capital. So what is the ratio of their capital? Ratio of their capital is 1/3. That means their profit sharing ratio or loss sharing ratio is 1:3. How do I know this is 1/3? Because it is given. See, it is 50,000 and 1,50,000. So when you divide them, it is 1 divided by 3. Okay, so there is the first thing. Okay, so balance sheet is given here. Liability, asset. I have already told you, મેં તમને પહેલાં કીધેલું છે કે જ્યારે પણ બેલેન્સ શીટ આપેલી હશે એડમિશન ઓફ એ ન્યૂ પાર્ટનરવાળા ક્વેશ્ચનમાં, સો ધ ક્વેશ્ચન विल बी वेरी स्मॉल. द बैलेंस शीट विल बी स्मॉल. कैसी होगी वो? छोटी सी बैलेंस शीट होगी जो आप देख सकते हो कि है. ठीक है ना. तो कैपिटल अकाउंट्स दिए गए हैं दोनों पार्टनर्स के, रिजर्व फंड दिया है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग कुछ बाकी एक्सपेंसेस है, सारी लाइबिलिटीज़. उसके बाद असेट्स जिसके साथ हम बहुत ही कंफर्टेबल है हमेशा से, है ना. बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एंड स्टॉक, है ना. ये तो अभी ऐसी ही बात हो गई कि घर के मेंबर्स हो गए हमारे, है ना. तो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक वेरी वेरी कॉमन असेट्स, हमको हमेशा पता रहता है. उसके बाद आता है डेप्टर, है ना. उसकी एंट्री अगर उसका एडजस्टमेंट हुआ तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहेगा, कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे हम लोग. उसके बाद है कैश एंड बैंक जो कैश अकाउंट में भी आएगा, एक्रूड इनकम, ठीक है, अदर इनकम. चलिए, तो ये चीज़ हो गई सारी की जो हमको दे दी गई है. उसके बाद आगे देखते हैं. पहले क्वेश्चन को पूरा का पूरा समझना है फ्रेंड्स. देखिए, क्वेश्चन समझने में जितना भी आप टाइम दोगे उतना ही कम टाइम आपको आंसर को सोल्व करने में लगेगा. ठीक है ना. सो दैट इज़ वाई सॉल्विंग द क्वेश्चन इज इम्पोर्टન્ટ, बट बिफोर दैट રીડિંગ ધ ક્વેશ્ચન થરલી ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણા કેસમાં કેવું થશે? whenever I am explaining the question here, okay, so in your exam suppose आज क्वेश्चन આવી જાય છે પ્રેરણા એન્ડ પિયુષ વાળો, है ना. that means કે મેં જેટલું પણ તમને એક્સપ્લેન કરેલું છે આન્સરમાં નહીં ક્વેશ્ચનમાં, that also you will remember. Okay, that is why don't skip this part in the video, listen everything. Okay, so Prerna and Piyush, they are sharing the profit and loss in the capital ratio. Their capital is 50,000 and 1,50,000. Okay, this is already given again. Premium for goodwill for Poyani. Okay, Poyani is the new person who is coming as a new partner. Premium for goodwill of Poyani will be distributed between Prerna and Piyush in the ratio of 1:3. Okay, so that is called premium for goodwill. Now if you see, in adjustment, even in first question we have seen, જ્યારે પણ ગુડવિલ તમને અસેટ્સમાં આપેલી છે, બેલેન્સ શીટમાં ગુડવિલની અમાઉન્ટ આપેલી છે, so this goodwill will be distributed among the old partners. Suppose A and B are old partners. તો આ ગુડવિલ જે છે, કઈ ગુડવિલ? બેલેન્સ શીટમાં આપેલી છે ઓરિજિનલ ગુડવિલ, that is the goodwill made by old partners. So that will be distributed among them in the old ratio. Okay, here the situation is different. Here see premium of goodwill. Okay, so premium of goodwill is given, but goodwill is not given in the balance sheet. અહીંયા આપેલું નથી. So that premium will be divided between two persons in the ratio 1/3. So if you see दोनों रेशियो यहाँ पे कौन से हैं? 1/3 है ना. जो कैपिटल रेशियो है that is also 1/3, and on the other side if you see the other ratio for premium of goodwill, that is also given 1/3. तो બંને રેશિયો કયા આપેલા છે આપણને? 1/3. ઓકે, સો there is nothing to confuse. એવું નથી કરવાનું કે કેપિટલનો જ રેશિયો આપણે પ્રીમિયમ ઓફ ગુડવિલમાં લઈ લઈએ. ના એવું કરવાનું નથી. ઓકે, ફાઇન. So this is the basic question.
Now we will be understanding the adjustments. See friends, what you need to do is you need to keep the question open in your book. તમારી બુકમાં ક્વેશ્ચન ઓપન રાખવાનો છે. વન બાય વન જેવી રીતે હું એકાઉન્ટ્સ બનાવીશ, જેવી રીતે હું એકાઉન્ટ્સ ડ્રો કરીશ, યુ હેવ ટુ ડ્રો ધ એકાઉન્ટ્સ વિથ મી ટુગેધર. ઓકે, so that you will be comfortable in solving the question finally. If you feel we are going fast, you can slow down the video, उसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हो या फिर उसको पॉज भी कर सकते हो. ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि एडजस्टमेंट कौन कौन से है, क्या क्या एडजस्टमेंट है. सो दे एडमिटेड पोयानी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 ऑफ द शेयर. चलो 1/5 ऑफ द शेयर इज गिवन. सो वी ऑलरेडी नो अवर मेथड. हमको क्या दिया है, हमको ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है. उसके बाद बोला है कि 1/5 शेयर के लिए कौन आ रहा है, पोयानी. ओके, न्यू पार्टनर इज कमिंग. ओके, सो वी ऑलरेडी नो कि जब भी रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का फर्स्ट वीडियो देखना है आपको, कुछ भी डाउट है तो, है ना, तो उसमें 3 ही तरह से आ सकता है. ये भी उसी का एक टाइप है. ठीक है, ओके. तो पोयानी बॉट 62,500 एज कैपिटल एंड 24,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. ओके, अभी सब कुछ किस में आ रहा है, कैश में आ रहा है. ठीक है ना, जो चीज़ आ रही है वो किस में आ रही है, कैश में. उसका मतलब कि हम कैश अकाउंट बनाएंगे, उसमें इनको इंक्लूड करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि वो कैपिटल जो है वो अलग ला रही है और उसके बाद गुडविल, है ना, गुडविल के लिए अलग पैसा दे रही है, जो नई पार्टनर आ रही है वो. ठीक है ना, तो ये जो है वो भी हमारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. अभी मैं आपको एडजस्टमेंट भी बताता हूँ. ठीक है ना, उसके बाद हम अकाउंट्स बनाएंगे. ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी. स्टॉक की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू दी गई है. हो सकता है ये एसेट में इंक्रीज हो रहा हो या फिर एसेट में डिक्रीज हो रहा हो. आपको ऑलरेडी पता है एसेट में डिक्रीज होगा तो वो आएगा डेबिट साइड, और अगर इंक्रीज होगा तो वो आएगा क्रेडिट साइड. ठीक है, तो इसमें इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है. स्टॉक और मशीनरी वाला एडजस्टमेंट हमेशा रहेगा हमारे साथ और वो हमारे लिए इजी एडजस्टमेंट भी है. ठीक है ना, उसके बाद बेड डेप दिया है हमको कितना, 10%, और 2% जो है वो डिस्काउंट रिजर्व दिया है किसमें, डेप्टर्स में. ठीक है ना, तो करना क्या है, यहाँ पे देखिए जो एंट्री हम करते थे फाइनल अकाउंट्स में वो सेम एंट्री यहाँ पे डेप्टर्स की या बेड डेप की करनी है. देखिए डेप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, कितने हैं, 30,000. ठीक है ना, उसके बाद बोला है कि बेड डेप जो है वो कितना है, 10%, मतलब 10% यहाँ से हम निकाल देंगे. तो 10% निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 27,000. ये हम कहाँ पे कर रहे हैं, बैलेंस शीट में, जो फाइनल बैलेंस शीट होगी वहाँ पे. मैं आपको ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ. उसके बाद क्या बोला है, बेड डेप रिजर्व, है ना, बेड डेप रिजर्व कितना है, वो 2% है. ठीक है ना, तो वो 2% है, वो किसका 2% होगा फ्रेंड्स, वो 2% होगा 27,000 का. तो इसका 2% जो भी होगा फ्रेंड्स 540 होगा मेरे ख्याल से. यस, तो उसको भी माइनस हम करेंगे. ठीक है ना, तो देखिए ये जो वैल्यूज आ रही है वो बैलेंस शीट में आ रही है, लेकिन ये जो डिफरेंस वाली दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू आएगी कहाँ पे फ्रेंड्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट में. कहाँ पे आएगी वो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में. किसके ऊपर डिपेंड होगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा डिफरेंस ही आएगा, जो डिफरेंस ये वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ या तो इंक्रीज हो रही है या तो फिर डिक्रीज हो रही है. ठीक है ना, तो इस तरह से ये चीज़ें जो है वो हमको दे दी गई है. ठीक है ना, चलिए फिर से हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में. ठीक है ना, तो क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹30,000. वेरी वेरी सिंपल एंट्री. क्रेडिटर्स को हमको 30,000 देने हैं, पे कर रहे हैं. ठीक है ना, ओके. तो आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे होगी उसकी एंट्री. असेट या लायबिलिटी में क्या चेंज होता है. ठीक है, क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी है, उनको हमको पेमेंट करना है, मतलब लायबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है ना, चलिए उसके बाद बोला है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 15% एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%. चलिए ये कौन से हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, है ना. हमारे फैमिली मेंबर्स वाले असेट कौन से हैं फ्रेंड्स, मशीनरी, है ना, उसके बाद स्टॉक, फर्नीचर एंड बिल्डिंग. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे हैं. तो देखिए चारों का एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया गया है हमको, है ना. जो सेकंड एडजस्टमेंट था आप यहाँ पे देख सकते हो. सो सेकंड एडजस्टमेंट वॉज द एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक एंड मशीनरी. और यहाँ पे फिफ्थ एडजस्टमेंट, पांचमो एडजस्टमेंट જે શેના માટે છે, બિલ્ડિંગ એન્ડ ફર્નિચર. ઓકે, સો બંનેમાં વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ થાય છે. ધેટ મીન્સ દે વિલ બી ધ પાર્ટ ઓફ રીવેલ્યુએશન અકાउंट, है ना. सेकंड लेक्चर, यू रिमेंबर द सेकंड लेक्चर, आई टोल्ड यू कि कैसे पता चलेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सा एंट्री डालना है. अरे ऐसे पता चलेगा कि जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा ना वही डालना है रिवैल्यूएशन में.
अगर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है तो कोई भी चीज़ रिवैल्यूएशन में डालना नहीं है अपने को, ठीक है ना, इजी। चलिए फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, उसका भी एडजस्टमेंट हमको ऑलरेडी पता है, सेम होगा जैसे फाइनल अकाउंट्स में करते थे, ठीक है ना। एक एंट्री आएगी सीधी बैलेंस शीट में, क्योंकि वेजेस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुए, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे बाकी है, लाइबिलिटी है वो, उसके साथ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड वो ऐड होगा, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी वो ऐड होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये हमने एडजस्टमेंट देख लिए। उसके बाद अभी देखते हैं कि कैलकुलेशन जो है वो कैसे करना है, जो बेसिक्स है ना, जो सम स्टार्ट करने के पहले हमको करनी पड़ेगी, ज़रूरी होगी, वो कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको ऑलरेडी दिया गया है कि 24,000 जो है ना, 24,000 जो है वो किसकी बात हो रही है, वो हो रही है प्रीमियम फॉर गुडविल की, ठीक है ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहाँ पे हमको दिया गया था 1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स कौन कौन है, प्रेरणा एंड पीयूष, ठीक है ना, ये दोनों पार्टनर है। तो प्रेरणा जो है ना, उसका शेयर यहाँ पे कितना होगा, वो होगा 1/4, और पीयूष जो है उसका शेयर यहाँ पे कितना होगा 3/4, ठीक है ना। तो मतलब हमको दोनों की वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू हमारी मिल गई 6,000 और यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो है 18,000, ठीक है ना। देखिए आपको मेरे साथ साथ में लिखते जाना है, ये किसका एडजस्टमेंट है, किसकी कैलकुलेशन है, गुडविल की, और प्रीमियम ऑफ गुडविल की कैलकुलेशन है ये, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो एंट्री हो रही है ना, इसका एडजस्टमेंट या इसकी जर्नल एंट्री जो है वो कैसे होगी। देखिए नया पर्सन जो एंटर कर रहा है बिजनेस में, ठीक है ना, वो इन दोनों को एक्स्ट्रा गुडविल दे रहा है, ठीक है ना, कि वो 24,000 कैश में गुडविल के तौर पे लेके आ रहा है। तो वो हमने डिवाइड किया कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। ये न्यू रेशियो कहाँ दिया था हमको, क्वेश्चन में दिया था, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो अभी इसका जो एडजस्टमेंट होगा, सॉरी इसकी जर्नल एंट्री होगी, वो क्या होगी, तो वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2, है ना। ये अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट, कितना है वो अमाउंट 24,002, प्रेरणा अकाउंट एंड 2 पीयूष अकाउंट, ठीक है ना। दोनों को कितने कितने मिल रहे हैं, एक को मिल रहा है 6,000 और एक को मिल रहा है 18,000, ठीक है ना। तो ये जो है वो हमारी जर्नल एंट्री होगी। अगर पूछा है, क्वेश्चन में लिखा है कि जर्नल एंट्री दिखाना है, तो आपको दिखाना पड़ेगा, वरना ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही समझ जाओगे कि देखिए कुछ पैसे इन दोनों को मिल रहे हैं, है ना, तो नया पार्टनर आया तो उसने एग्जिस्टिंग पार्टनर को पैसे दे दिए, उसका मतलब क्या हो गया कि वो पैसे उसके कैपिटल अकाउंट में जाने वाले हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज यू नो दिस इज़ द आंसर, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे जो दिया है वो किस में दिया है, कैश में दिया है। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो दी है वो किस में है, कैश में। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में देखा है कि कैपिटल जो लेके आ रहा है पर्सन वो भी कैश में है, गुडविल और प्रीमियम जो एक्स्ट्रा मनी है वो भी कैश में है। तो ये सारी चीज़ें कौन से अकाउंट में आने वाली है फ्रेंड्स, कैश अकाउंट में, ठीक है ना। जैसे ही देखेंगे आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है एक और चीज़, आपको देखिए शायद वो एडजस्टमेंट में स्कीप हो गया हमसे, लेट्स सी, ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक एडजस्टमेंट मिस हो गया है, वो है कि जो दोनों पार्टनर्स है फ्रेंड्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 60% ऑफ द गुडविल। तो जितनी भी टोटल गुडविल है फ्रेंड्स, उसमें से 60% गुडविल, हाँ देखिए ये रहा, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, 60% अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, है ना। तो जो 60% अमाउंट है ना, वो ओल्ड पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, बाकी की जो गुडविल है वो बिजनेस में ही रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि जो 24,000 है, पहले तो वो गुडविल आ रही है, क्योंकि गुडविल की एक ही अमाउंट दे रखी है हमको, બેલેન્સ શીટમાં કોઈ અમાઉન્ટ આપણને આપેલી નથી, है ना। બેલેન્સ શીટમાં આપેલી હોત તો શું કરવું, વી નો ધેટ। તો ગુડવિલની એક અમાઉન્ટ આપેલી છે એડજસ્ટમેન્ટમાં, હવે આના 60%, ઓકે, 60% ઇઝ 14,400. So this 14,400 is distributed between two partners, है ना। तो આ બંને પાર્ટનર વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે કયા રેશિયોમાં, સેમ રેશિયોમાં, યુ નો, ઓકે। So 1 is 14,400 into 1/4, that is equal to 3,600, and next is 14,400
इंटू 3/4 है ना, तो उसका आंसर जो आएगा फ्रेंड्स वो होगा 10,500। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 10,500। ठीक है, तो देखिए अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि ये दोनों अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो रही है। कौन विड्रॉ कर रहा है? पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो भी कहाँ पे जाएगी? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो जो है ये अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बेसिक्स की ख़त्म हो गई। तो एडजस्टमेंट में जितनी भी चीज़ें हमको चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। देखिए मैंने बोला था आपको पहले ही लेक्चर में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको चाहिए रेशियो। रेशियो का काम एक ही होता है। कौन सा काम है रेशियो का? तो रेशियो का वही काम है कौन सा कि जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, गुडविल है तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसी का एक रेशियो का काम होता है। ठीक है ना, गुडविल के लिए यूज़ का काम होता है। फिर जो ओल्ड रेशियो है उसमें पार्टनर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना, तो नए रेशियो का काम क्या है? सिर्फ गुडविल के लिए, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है ना, अभी जाते हैं क्वेश्चन में। सो लेट्स सी द क्वेश्चन वन बाय वन। ओके, लेट्स सी द आंसर वन बाय वन, सॉरी। तो सौथी पहला ओके वी विल बी स्टार्टिंग विथ कैश एंड बैंक अकाउंट। Okay, so if you see, the carry forward balance is 8250 already given in the question. 8250 already आपने आपेलू है, you can check it. You have to keep question with you so that it will be comfortable for you to understand the answer. Okay, then we already have the Koyanis capital. New person is coming with 62,500 as a capital, and that capital is in cash. तो कैश में आपेलू है, that is why we are taking it in the cash account or bank account, you can say. Fine. Okay, going further, here now it is premium for goodwill. Okay, so it is for Prerna's capital and Piyush capital. So Prerna's capital 6,000 and Piyush capital will be 18,000. So both of these are also in cash. I have already told you they are also in cash. So 24,000 will come there also. Fine, and this is the total. Fine. On the other side, જે વિડ્રો કરેલું છે, વોટ એવર ઇઝ વિડ્રોન બાય ધ પાર્ટનર્સ, સો દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ધ ડિફરન્ટ પાર્ટનર્સ. ઓકે, સો પ્રેરણા's capital goodwill is 3600 and the other one is 10,800. I think the amount that I have written was wrong. It is 10,800 and not 10,500. Okay, you can correct that. It is 10,800. Okay, fine. So let's carry on the question further. Okay, after taking goodwill of both of them, the balance. Okay, now how we are finding, first we have got this total 94,750 on the left hand side. Now what we are going to do, what is the carry forwarded balance that we are finding like this. So this is the cash, okay, that is going further, okay, which will be going in the balance sheet. So 80350 is the amount that you need to remember. Now see, in most of the question what you have to do is you have to make the cash account. तो cash account तो આપણે પહેલા બનાવી જ લેવાનું છે, કારણ કે કેશ એકાઉન્ટમાંથી આપણને જે પણ બેલેન્સ મળશે એ આગળ જશે, રાઈટ. ગુડવિલ એન્ટ્રી પણ જો કેશમાં હશે તો ઇટ વિલ બી ધ પાર્ટ ઓફ કેશ એકાઉન્ટ. ઓકે, તો કોઈ ટેન્શન લેવાનું નથી. યુ હેવ ટુ બી રિલેક્સ. યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ક્વેશ્ચન. યુ નીડ ટુ ડ્રો ધ એકાઉન્ટ્સ એઝ વેલ. એકાઉન્ટ્સ એ ડ્રો કરવાના છે. ફાઇન, ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ મેઇન પાર્ટ. ઓકે, આન્સરનો મેઇન પાર્ટ. ઓકે, so from where are we starting first of all? Okay, see, I have already told you in the previous question, what you have to do is first you will make the revaluation account on the left hand side corner of your book. उसके नीचे उसी पेज में आपको क्या लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और सामने वाले पेज में आपको लिखनी है बैलेंस शीट, है ना. सो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी कमिंग ऑन द सेम पेज. दिस थर्ड बैलेंस शीट विल बी कमिंग ऑन द ऑपोजिट पेज. ऐसे ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना. सो दैट you don't need to turn the pages. આપણે તમારે પેજીસ ઘડી ઘડી ફેરવવા પડશે નહીં. ફાઇન. ઓકે, સો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ બેઝિક થિંગ. ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશું આપણે? ફેમિલી મેમ્બર્સથી. હુ આર ધ ફેમિલી મેમ્બર્સ? બિલ્ડિંગ એન્ડ ફર્નિચર. Now if you see, the new value of building and furniture is given, okay, and the difference we are writing in the revaluation account. Okay, so it is already given. Let's see the values. Okay, you already have the question but I don't have it, so I have to see that. Okay, so the value of building and furniture, they are given 90,000 and 17,500. These things are given. And now on the other side, if you see them, then value of building is increased by 15% and furniture is increased by 20%. So what we are going to do here is, first thing, જ્યારે પણ આ ક્વેશ્ચન કરશું આપણે
extremely important. Whenever we are writing this question, doing this question, the first entry that we are going to do will be the entry of family members. Family members कौन है? हेलो हेलो, कौन है? बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, ओके, ऑल दिस, ये सारे कौन है हमारे फैमिली मेंबर, और मशीनरी, ऑफ कोर्स मशीनरी। तो देखिए यहाँ पे हमको बोला है कि 15% इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है। जो इंक्रीज हो रहा है वो डिफरेंस वाला अमाउंट यहाँ लिया है हमने, क्योंकि उतना ही रीवैल्यू हो रहा है, ठीक है ना। बाकी जो नई अमाउंट होगी वो डायरेक्टली जाएगी हमारी फाइनल बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में आपको हमेशा लिखना है दिस इज द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद आपको हमेशा एक चीज़ लिख लेनी है बैलेंस शीट में, क्या? वो है कैपिटल अकाउंट, है ना। देखिए लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट्स आएंगे ही आएंगे, 100% कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि वो तो उनकी लायबिलिटी रहनी है, उनमें तीनों पार्टनर जो है वो इंक्लूड होंगे। आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या है फ्रेंड्स? 2 पार्टनर्स, अभी तीसरा भी इंक्लूड हो गया, तो उसको भी हमको इंक्लूड करके ही यहाँ पे चीज़ों को गिनना है, ठीक है ना। तो देखिए वो भी लिख लेना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर प्रॉफिट है तो आप उसको रिवैल्यूएशन में लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि ओल्ड पार्टनर्स उनका कैपिटल अकाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा ओल्ड रेशियो में, है ना, अभी कैलकुलेट नहीं होगा। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपको ये क्वेश्चन फास्ट करना है तो आपको तीनों अकाउंट्स साथ में बनाने पड़ेंगे। इसी प्रोसेस पे हम आगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया? वी टू बिल्डिंग फर्नीचर, जो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हैं, बहुत ही ईजी उसके एडजस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई रोल नहीं है। जैसे जैसे आप 5-6 क्वेश्चंस कर लोगे हमारे वीडियोस के, ये हमारा 4th वीडियो है फ्रेंड्स, तो टोटल 9 वीडियोस हम बनाने वाले हैं, तो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे यू विल बी फीलिंग रियली वेरी वेरी कंफर्टेबल। आपको पता चलेगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा या क्या नहीं आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी चीज़ लगनी है, हमेशा आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद कैपिटल अकाउंट में हमने क्या लिख लिया? कैपिटल, वो भी आना ही आना है ना। तो कैपिटल दोनों पर्सन का हमको पता है 50,000, दूसरे का 1,50,000। कैश जो है, पुयानी जो है वो कैश लेके आ रही है, कितना है? 62,500। ओरिजिनली ऑलरेडी दे दिया है कि वो 62,500 कैश लेके आ रही है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अगर आपने मेरे साथ ड्रॉ नहीं किया है ना, यहाँ पे तो मेरे पास ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ ही था, अगर नहीं किया है वीडियो पॉज कर सकते हो एंड डू इट, ओके। लेकिन साथ साथ में आपको सारे की सारी कैलकुलेशन करनी ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ओके ओके। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। देखिए फैमिली मेंबर्स को करेंगे कंप्लीट, हमने ऑलरेडी ले लिया था क्या? बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ठीक है। अभी हमने 2 फैमिली मेंबर्स को ऐड कर लिए, मशीनरी एंड स्टॉक। इसको फैमिली मेंबर क्यों बोलता हूँ? बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही ईजी एडजस्टमेंट इसके, कैपिटल अकाउंट से लेना देना नहीं है, हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो आएंगे। क्यों आएंगे? आपको ऑलरेडी पता है कि असेट माइनस या फिर लायबिलिटी प्लस होती है तो वो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड होगा। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा फ्रेंड्स? अगर दूसरी सिचुएशन है, रिवर्स सिचुएशन है, जैसे कि एसेट प्लस हुआ या फिर लायबिलिटी माइनस होगी, तो वो होगा क्रेडिट साइड। तो देखिए यहाँ पे जब भी एसेट में चेंज होगा, है ना, तो बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी उनको तो चेंज होना ही होना है, ठीक है ना। तो इसलिए उनका जो एडजस्टमेंट होगा वो हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन चारों को तो हमको लेना ही है। फिर से वही प्रोसेस है, असेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे के सारे असेट इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज की कहीं बात नहीं है, इसलिए इनको हमने ले लिया है क्रेडिट साइड, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी फोकस करना है आपको, यहाँ पे नई वैल्यू आप फाइनल वैल्यू ले रहे हैं कि जो टोटल नई वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि मशीनरी की नई वैल्यू जो है वो 1,20,000 है। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, पहले जो वैल्यू थी कुछ और थी, जो डिफरेंस था वो यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे जो है वो टोटल वैल्यू लेनी है, यहाँ पे लेनी है, वो हमेशा कौन सी वैल्यू होगी फ्रेंड्स? हमारी टोटल वैल्यू होगी, ठीक है ना। चलिए तो आप इन दोनों चीज़ों को भी नोट कर सकते हैं, गो फॉर दैट ऑल्सो। ओके सो लेट्स गो फर्दर, अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए अभी हमने, आप देखो अगर या मार्क किया हो आपने, तो मैंने क्या किया यहाँ पे,
कि असेट साइड है ना वो पूरी की पूरी फिनिश कर दी, कंप्लीट कर दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सारे के सारे एडजस्टमेंट है फ्रेंड्स वो इन असेट के तो होने ही होने हैं। असेट वाले एडजस्टमेंट हमेशा दिए होंगे हमको, तो प्रिफरेबल क्या है कि असेट वाली चीज़ें आप सारी कंप्लीट कर दो, ठीक है ना। तो लाइबिलिटीज़ में तो वैसे भी कैपिटल अकाउंट जो है वो लास्ट में ही आने हैं, क्योंकि उसके लिए आपका कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आप पहले नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, डेप्टर्स कितना है 30,000 है ना। डेप्टर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30,000। उसमें से बेड डेप रिजर्व माइनस कर दिया 3000, मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था, वो भी हमारे एडजस्टमेंट का पार्ट। उसमें से माइनस किया हमने डिस्काउंट रिजर्व कितना है 2%, तो किसका 2% है वो 2% ऑफ 27,000, इसका 2% हो गया वो। जैसे ही वो किया तो फाइनल वैल्यू हमारी आ गई ये 24,640, ठीक है। अभी जो हमारा एडजस्टमेंट था उसमें हमको क्या दिया था कि 10% हमको बेड डेप रिजर्व रखना है, और जो 2% है वो क्या है डिस्काउंट रिजर्व, ये दोनों चीज़ दे दी गई थी। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रीवैल्यूएशन हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि या तो कुछ चीज़ इंक्रीज हो रही है या तो कुछ चीज़ डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आप देखो तो असेट्स में क्या हो रहा है, माइनस किया है, देखिए दोनों को माइनस किया है हमने, मतलब कि असेट डिक्रीज हुए। अगर एसेट डिक्रीज हुए तो वो दोनों कहाँ पे आने चाहिए, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड होने चाहिए। हमारा रूल क्या है, असेट डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज, तो वो कहाँ पे आएगा डेबिट साइड पे। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है फ्रेंड्स, वो ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस नहीं लिखा है, आपको लिखना ही है, ठीक है ना, वरना वो स्कूल वाले फैकल्टी को बुरा लग जाएगा, मुझे भी शायद बुरा लग जाए थोड़ा। चलो तो वो लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ डिफरेंस ही लिया है। डिफरेंस कितना है 3000 ये अमाउंट, और 550 मतलब कि दूसरी अमाउंट, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस हमको लेना है रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन में हमेशा उतनी ही चीज़ आएगी कि जो या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है। टोटल अमाउंट या फाइनल अकाउंट हमेशा कहाँ पे आएगी फ्रेंड्स, वो आएगी हमारी बैलेंस शीट में, ठीक है ना। तो वो आएगी बैलेंस शीट में। चलिए उसके बाद दो एंट्री है हमारी ब्लू जोन वाली, है ना। आपको याद होगा ब्लू जोन क्या है, ठीक है ना, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, जिसका बाकी कोई चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो पार्ट ब्लू जोन वाला है। वैसे यहाँ पे एक ही पार्ट ऐसा है जो है एक्रूड इनकम, वो 750 है, वो ऐसे ही हमने ले लिया, एसेट का पार्ट है वो, ठीक है। कैश और बैंक बैलेंस ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया है कैश अकाउंट में से। देखिए आपने कैश अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, 80350 जो है वो उस कैश अकाउंट का टोटल है। कैश अकाउंट आपको इसीलिए इन तीनों के पहले चाहिए होगा, इसलिए कैश अकाउंट हम पहले बनाएंगे हमेशा, ठीक है। तो ये जो है कैश बैलेंस भी हो गया। अभी देखिए आप अगर कंसीडर करो, यहाँ पे फोकस करो, तो लगभग रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो भी कंप्लीट आने को है, और उसके बाद बैलेंस शीट का जो हमारा असेट साइड है वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मतलब कि अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो, देखिए बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं करते हो, आप असेट वाले एडजस्टमेंट कर देते हो, तो भी आपको 4 से ज़्यादा मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है ना। वैसे हमको तो 8 मार्क के लेने हैं, टोटली कन्फर्म्ड मार्क्स इसके लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट एंट्री जो है वो हम यहाँ पे कौन सी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अभी हमने नेक्स्ट ले लिया है, सिर्फ एक ही चीज़ ली है। कौन सी चीज़ है फ्रेंड्स, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का ऑलरेडी हमने एंट्री देखी थी, हमने उसकी जर्नल एंट्री भी देखी थी, मैंने आपको बोला था वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो क्या है वो प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रेरणा और पीयूष, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स गुडविल वाली पार्ट जो होगा, जो प्रीमियम ऑफ गुडविल वाला पार्ट होगा, वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में आएगा, वो आपको याद रखना है। नई बैलेंस शीट में कभी नहीं आएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, देयर वाज वन सेंटेंस, है ना, मैजिकल वर्ड्स, 3 मैजिकल वर्ड्स, શું હતા, ગુડવિલ ગાયબ છે, है ना, गुडविल गायब છે। तो गुडविल विल नॉट कम इन द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, ओके, यू मस्ट मार्क दैट। So premium of goodwill is coming, okay. Again the easy part, it is distributed. આ કઈ goodwill છે જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલી છે કયા પાર્ટનર્સમાં, ઓલ્ડ પાર્ટનર્સમાં. who has given this 24,000, Koyani has given, she has given in cash, okay. So that is distributed in the new ratio 6,000 and 18,000, okay. Let's go further. We are almost in the last part of the question. बहुत ही easily आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपको लगे कि वीडियो बहुत लंबा है, 40 मिनट का हो गया, 30 मिनट का हो गया, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूरी है। जब भी आप दूसरी बार ये चीज़ करोगे तो हो सकता है कि आप म्यूट मुझे कर दो, है ना, मुझे म्यूट करके ही आप पूरा वीडियो देख लो फास्ट फॉरवर्ड में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दो, मेरी भी बात थोड़ी सुन लो,
और अलॉन्ग विद दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उसमें दोबारा ऐसा टाइम नहीं जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सीखना जो है वो ज़रूरी होता है, एक बार होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंक्लूड किया है अनपेड वेजेस, दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन थिंग। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमको ऑलरेडी पता है, जब भी आउटस्टैंडिंग चीज़ कोई होगी जो बाकी होगी वो हमारी लायबिलिटी होगी, और यहाँ पे रीवैल्यूएशन में तो वो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी हो रही है इंक्रीज। हमारा रूल क्या है? एसेट डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज, उसको लेना है डेबिट साइड। तो लायबिलिटी हुई इंक्रीज, इसलिए 460 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ यही चीज़ हमने की है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। वन बाई वन सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं हम, ठीक है ना। आगे जाते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद जो एडजस्टमेंट या उसके बाद जो एंट्री हमारी है वो एंट्री है क्रेडिटर्स की, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो तो 30,000 है ना, लेकिन डिफरेंस वाली वैल्यू है वो 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बोला है कि क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड, है ना, शायद ऐसा बोला है। क्वेश्चन मेरे पास वैसे नहीं है, लेकिन मैं देख लेता हूँ, आपको बताता हूँ, है ना। 10,000 जो क्रेडिटर्स वाली एंट्री है फ्रेंड्स, वो कौन सी है, लेट्स सी। चलिए 40,000 जो है वो क्रेडिटर्स की अमाउंट है, ओरिजिनल बैलेंस शीट में दे दी गई है। लेकिन बोला क्या है कि क्रेडिटर्स आर पेड 30,000, है ना। तो क्रेडिटर्स को पे कितना करना है, 30,000 पे करना है। लेकिन बैलेंस शीट में कितना दिया था, 40,000 दिया था। उसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 जो है वो उसका डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस आ गया है, उससे क्या हुआ है, क्या वो हमको बेनिफिट हुआ है? यस, देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि अगर असेट प्लस होता है या लायबिलिटी माइनस होती है तो उसको हम यहाँ पे लेंगे। अभी क्या हुआ कि ओरिजिनल क्रेडिटर्स हमको दिए गए थे 40,000, ठीक है, लेकिन क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 30,000 ऐसा एडजस्टमेंट में दिया है। तो 40,000 तो कहीं पे आपको लिखना ही नहीं है, तो 30,000 लिखना है ना। 30,000 कहाँ पे लिखना है, बैलेंस शीट में, क्योंकि उसको देना बाकी है। डिफरेंस कितना आया, 10,000, तो वो हमने ले लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्यों उसको क्रेडिट साइड लिया? क्योंकि लायबिलिटी हमारी हो रही है डिक्रीज। पहले लायबिलिटी कितनी थी हमारी, 40,000 थी, अभी कितनी हो गई, 30,000। कितना डिक्रीज हुआ, 10,000, उसको हमने ले लिया कहाँ पे फ्रेंड्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, सिंपल। लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट। ओके, सो लेट्स सेव द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट में क्या किया है, देखिए अभी हमारी जो सारी एंट्री खत्म हो रही है वो किसकी है, ये वाली। देखिए एक चीज़ और आपको याद रखनी है, कौन सी, कि सबसे पहले जो खत्म होने वाली चीज़ होगी ना वो 95% ऑफ द केसेस में असेट्स ही होगी। सबसे पहले असेट्स ही आपके खत्म हो जाएंगे, उसका टोटल आ जाएगा। सेकंड जो होगा वो हमेशा क्रेडिटर वाला होगा, है ना। यस, अगर लॉस है तो वो डेबिट साइड वाला भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉस वाले आपके 2 या 3 ही क्वेश्चन है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रॉफिट वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो सेकंड जो सिचुएशन खत्म होगी आपकी ये, मतलब कि आपको ये दोनों टोटल जो है वो मिल जाएंगे इनिशियली, ठीक है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। उसके बाद ये टोटल जो है वो हमने लिख लिया 42,000 यहाँ पे। डिफरेंस जो है वो हमको मिला 38,000, ठीक है ना। तो 38,000 को डिवाइड करना है किस में, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो जो है वो कितना है फ्रेंड्स, 1:3, है ना। तो ओल्ड रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है ना। तो ये जो है वो पार्टनर्स कैपिटल हमारा आ गया, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही आगे जाएगा और उसके बाद ही हमारी बैलेंस शीट जो है वो खत्म होगी, ठीक है। तो ये जो है वो थर्ड चीज़ हमको मिलेगी। आगे जाते हैं नेक्स्ट वन। देखिए इजी पार्ट वाला है जो, उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको ऑलरेडी पता है। सो इट इज़ रियली इजी, ठीक है। तो चलिए अभी क्या हो रहा है, देखिए रिजर्व फंड आ गया यहाँ पे, रिजर्व फंड अकाउंट। देखिए मैंने आपको जो इनिशियल वीडियो थे उसमें बोला था, है ना, એમાં કીધેલું છે તમને કે रिजर्व फंड છે that will be distributed like जनरल रिजर्व। तो दोनों पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजर्व फंड जो है वो इमरजेंसी के लिए रखा है। वो जो फंड है वो किसने बनाया है, ओरिजिनल पार्टनर्स ने। तो उसमें नए पार्टनर का कोई रोल नहीं है, वो रिजर्व फंड के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे दे नहीं रहा है। तो उसको हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वी विल डिस्ट्रीब्यूट देम इन द ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको भी हमने कैपिटल अकाउंट में ले लिया है, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट ऐसा अकाउंट होगा कि जिसमें डिसाइड होगा कि तीनों पार्टनर जो है उसका जो है डेबिट या क्रेडिट कितना है, कैसा है, ठीक है ना। उसके लिए कैपिटल अकाउंट की हमको ज़रूरत होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या आ गया हमारा,
बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए अभी जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या हो रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला प्रॉफिट का एंट्री हो गया है ना। तो वो कौन सी एंट्री है, सॉरी वो ये लास्ट वाली एंट्री है हमारी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का। अगर लॉस होता तो ऑफकोर्स वो यहाँ पे आता, लॉस होता तो वो यहाँ पे आता, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है, दोनों का प्रॉफिट दे दिया गया है हमको, तो उसको हमने लिख लिया। अभी जैसे ही ये ख़त्म हुआ हमको यहाँ पे मिल रहा है टोटल, क्या मिल गया, टोटल। ओके, तो टोटल जो है वो हमारा क्लियर है तीनों का। तो जैसे ही टोटल मिलता है आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट, है ना। कहाँ पे लिखोगे टोटल, अभी जैसे ही आपको टोटल मिल गया तो आप टोटल कहाँ पे लिखोगे, देखिए यहाँ पे आपको टोटल मिला, यहाँ पे आपने टोटल लिखा, यहाँ पे आपने बैलेंस लिखा जो आगे जाएगा, ठीक है। कौन सा है, 69,400, 2 लाख समथिंग एंड 62,500, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है वो हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है जो कैपिटल अकाउंट का है। तो ये तीनों जो है वो लास्ट पार्ट कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तीनों जगह पे देखिए। इसीलिए लाइबिलिटी पहले कभी कंप्लीट नहीं हो सकती आपकी, जो सबसे पहले कंप्लीट होगी वो असेट साइड ही होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने टोटल ले लिया, डिफरेंस मिल गया। अभी लास्ट पार्ट जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए तीनों को हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, इसका टोटल ले लिया और यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, है ना। यहाँ पे तो डिफरेंस देखना नहीं है, बैलेंस शीट हमेशा मैच होनी चाहिए। तो मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। तो हमें मंजूर है, कबूल है ना। तो चलिए बात हो गई यहाँ पे ख़त्म। तो ये जो है वो हमारा आंसर एक्सेप्टेबल है, यू नो। तो वी एक्सेप्ट दिस आंसर, हमें कबूल है ये आंसर। तो बहुत ही ईजी तरीके से ये चीज़ जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, so friends, stay tuned for more videos and subscribe the channel right now. That's it from Dr. Gaurav Mehta today. Thank you.